اب ہم ایک وہی کلاسیکل سسٹم سے اپنے شروع کرتے ہیں جس پر میں بہت مرتبہ کام کر چکا ہوں. یہ ہمارا ایک کنٹینر ہے. میں وہی کنٹینر بنا رہا ہوں جو کلاس روم میں بھی آپ کے بہت کام آتا ہے ایگزامینیشن ویو پوائنٹ سے. اور یہ ایک موویبل پسٹن ہے یا موویبل سیلنگ ہے جو کہ حرکت کر سکتی ہے اوپر نیچے. اور یہ یہاں پر یہ اندر کوئی اس کے ایک آئیڈیل گیس ہے, مونوٹومک گیس ہے جو کہ باؤنس بیک کر رہی ہے, باؤنس آف کر رہے ہیں. اس کا پریشر P1 ہے اور اس کا جو والیوم ہے وہ V1 ہے. اور فرض کرتے ہیں کہ ہم اس کا ایک ٹمپریچر بھی ہے اور تو اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ T1 ہے. اور یہ ایکویلیبریم فارم میں ہے, یہ ایکویلیبریم میں ہے سب کچھ. ٹمپریچر سب چیزیں اس وقت کانسٹنٹ ہیں اور ویل ڈیفائنڈ ہیں. اور یہاں پر اس کے اوپر کچھ پتھر کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں, وہی پہلے ویڈیوز میں چھوٹے چھوٹے پیبلز ہیں, چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. اور میں ان کو بہت آہستہ کوسی اسٹیٹک پروسیس میں رکھتے ہوئے میں اس سسٹم کو میں سے پتھر ہٹا رہا ہوں تاکہ یہ ایکویلیبریم اسٹیٹ سے بہت زیادہ دور نہ جائے اور اپنے ایکویلیبریم اسٹیٹ کو بہت جلدی ریٹین کر لے. تو اس پر میں پہلے بھی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں, لیکن اب میں جس ویڈیو میں جس چیز پہ بات کروں وہ ہے آئسوتھرمک پروسیس. آئسوتھرمک پروسیس. اور آئسوتھرمک کا مطلب ہوتا ہے سیم ٹمپریچر. آئسو کا مطلب ہوتا ہے سیم, تھرمک کا مطلب ٹمپریچر. یعنی آئسوتھرمک پروسیس کا مطلب ہوا ایک ایسا پروسیس جس میں کہ ہم ٹمپریچر کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں, تبدیل نہیں کرتے پورے پروسیس کے درمیان. تو اب میں جب پیبلز اس میں سے ہٹاؤں گا, ریموو کروں گا, تو کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ میں یہ اس کی اسٹیٹ 1 تھی تو اس کو میں سیکنڈ اسٹیٹ میں لے آتا ہوں. اور یہ آئسولیٹڈ ہے, پورا کا پورا آئسولیٹڈ ہے, ساری کی ساری دنیا سے کٹا ہوا ہے. یعنی کہ یہ ایک ایڈیابیٹک پروسیس ہے, ایڈیابیٹک پروسیس ہے. عجیب و غریب لفظ ضرور ہے لیکن اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا سے کٹا ہوا, ساری کائنات سے کٹا ہوا, آئسولیٹڈ. تو یہاں پر اب میں ظاہری بات ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے پارٹیکلز ہٹا رہا ہوں. اور جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی کر چکا ہوں کہ یہ میں اس کو دوبارہ سے ڈرا کرتا ہوں. یہی کنٹینر ہے میرے پاس اور یہ اس میں اب میں نے اس کو اسٹیٹ 1 سے اسٹیٹ 2 میں لے آیا, ایک ایک کر کے پیبلز ہٹاتا ہوا. اور اب اس کا جو پسٹن ہے یا اس کی جو موویبل سیلنگ ہے وہ اوپر ہو گئی اور اس پہ کم پیبلز رہ گئے پہلے کے مقابلے میں. اور نمبر آف مالیکیولز وہی ہیں کیونکہ ایک آئسولیٹڈ اور سیلڈ سسٹم ہے. اور یہ جو ہے اب اس کا جو پریشر ہے وہ کم ہو گیا ہے کیونکہ یہ دیوار سے کم, اور والیوم بڑھ گیا ہے. تو کیونکہ یہ ایک ایڈیابیٹک پروسیس ہے لہٰذا اس میں کوئی ایکسٹرا ہیٹ شامل نہیں کی جا رہی. تو ٹمپریچر کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اس سسٹم نے کام کیا ہے پسٹن کو اپورڈ موو کرنے کے لیے, جیسے کہ اس نے یہاں پر یہ اتنا فاصلہ طے کر لیا ہے اس پسٹن نے, تو ظاہری بات ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کام تو کیا ہے. اور کام کو تبدیل ہونے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ انرجی کنزیوم کی ہے. تو یہ کائنیٹک انرجی جو ہے وہ ورک میں تبدیل ہو گئی. اور کیونکہ یہ ٹمپریچر جو مائکرو میجر ہے کائنیٹک انرجی کا, تو ہم کہتے ہیں کہ ٹمپریچر جو ہے وہ کائنیٹک انرجی کا ایوریج ہوتا ہے, ایوریج کائنیٹک انرجی آف پارٹیکلز ہوتی ہے. تو اب جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں نے کچھ میتھمیٹکس کے حوالے سے بھی کچھ خاصا کام کیا تھا اور شاید آپ کو بہت زیادہ پسند نہ آیا ہو, لیکن بہرحال اس کے ذریعے میں نے یہ بتایا تھا کہ ٹوٹل انٹرنل انرجی آف اے سسٹم کسی بھی وہ ہوتی ہے ٹوٹل کائنیٹک انرجی. یہ ایک آئیڈیل کا کیس میں تھا اور یہ ہوتی ہے 3/2 into nRT. تو ٹمپریچر جو ہے وہ ایک اسکیلنگ فیکٹر 3/2 nRT اسکیلنگ فیکٹر ہے, اور T جو ہے یہ ٹمپریچر. اور یہ کائنیٹک انرجی جو ہے ظاہری بات ہے کہ یہ ایڈیابیٹک پروسیس ہے تو ہم اس میں کہیں سے انرجی نہ تو شامل کر رہے ہیں اور نہ نکال رہے ہیں, لیکن بہرحال کنزیوم تو ہوئی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس ورک کرنے کی وجہ سے جو اس نے انرجی یوز کی, کائنیٹک انرجی یوز کی, تو ٹمپریچر بھی کم ہوگا کیونکہ کائنیٹک انرجی کم ہوئی ہے. تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ اب اگر میں اس کو اوریجنل فارمولا کو انٹرنل انرجی کے ڈیلٹا یو از اکول ٹو ڈیلٹا یو از اکول ٹو کیو
हीट एडेड टू द सिस्टम यानी कि सिस्टम दी गई हीट माइनस वर्क डन यानी वर्क डन किसके जरिए किया गया काम, सिस्टम का किया हुआ काम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अब हीट तो आपने कुछ दी नहीं क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो माइनस इसकी जो है वो कम हो जाएगी डिस्टेंस, क्योंकि हमने वर्क किया है। तो अब जो होगा जितना भी ये हुआ डेल्टा यू जो है ये डब्ल्यू जो है ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये इंटरनल एनर्जी भी जो है ये कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है एक तरह से इस वक्त हमारे पास एक मेजर है इंटरनल एनर्जी को मालूम करने का, और ये इसी तरह से होगा जब तक के। लेकिन एक सूरत और हो सकती है कि अगर टेम्परेचर तब्दील ना हो, फर्ज कर लीजिए मैंने कोई ऐसे इंतजाम करता हूं कि टेम्परेचर चेंज ना हो, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो 3/2 nRT जो है ये तब्दील नहीं होगा, ये अपनी जगह पे एक कांस्टेंट रहेगा। और अब हम उसी केस को पर हम बात करने जा रहे हैं, और ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो मैंने की थी ये आपको बताने की कोशिश थी कि अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस में करें तो हमारा टेम्परेचर भी वो नीचे जाएगा, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम में ही फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर पर भी फर्क पड़ेगा। तो आइसोथर्मिक प्रोसेस जो है उसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि सेम रखते हैं, तब्दील नहीं करते। मैंने क्या किया, ये मेरा पहला वाला जो सिस्टम था इसमें मैंने नीचे एक रेजरवॉयर लगा दी। रेजरवॉयर उसमें समझिए कि एक बहुत बड़ी सी कोई सी चीज होती है जिसे कि मैं फीडर के तौर पर इस्तेमाल करता हूं, कोई भी चीज फीड कराने के लिए। यहां मैं इसको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए एक रेजरवॉयर रख रहा हूं जिसका कि टेम्परेचर T1 है। तो ये मैंने अगर फर्ज कर लीजिए मेरे पास दो बॉल्स हों या दो चीजें हों, एक A और एक का टेम्परेचर A है और दूसरी का B है और एक साथ मिली हुई हों, तो हम एवरेज आउट करेंगे A+2 डिवाइडेड बाय 2 करके हम इनका एवरेज टेम्परेचर निकाल लेंगे। लेकिन अगर A जो है वो बहुत छोटा, एक समझ लीजिए कि छोटे से जर्रे की तरह से है, और B जो है वो आईफल टावर की तरह से इतनी बड़ी कोई सी चीज है, तो हम ये कहेंगे कि जी आयरन डस्ट या ये जो छोटा सा पार्टिकल है जो कि A है उसका टेम्परेचर भी जो है वो B का टेम्परेचर बन जाएगा। तो ये जो मेरा सिस्टम है ये और रिजर्वायर का भी कंपैरिजन वही है कि ये सिस्टम जो है ये रिजर्वायर के मुकाबले में बहुत छोटा है, या रिजर्वायर जो है इस सिस्टम के मुकाबले में जिस पर मैं इस वक्त बात कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो अगर ये एडियाबैटिक होता तो रिजर्वायर की जरूरत होती ही नहीं, लेकिन अब मैं इसको एडियाबैटिक नहीं है ये, अब मैं इसको आइसोथर्मिक पूरे प्रोसेस को बनाने जा रहा हूं, यानी कि इसमें टेम्परेचर सेम रहेगा। अब इस सूरत में मेरी पीवी डायग्राम जो है वो किस तरह से नजर आएगी, ये मैंने बनाई पीवी डायग्राम। ये मेरी पीवी डायग्राम है और यहां पर आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम, ये मेरी स्टेट 1 है जिसमें कि कोई प्रेशर और कुछ वॉल्यूम है, और मैं इसको तब्दील करते 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 मैंने पेबल्स रिमूव किए और फिर मैं दूसरी स्टेट में पहुंचा, यानी कि स्टेट 2 है। अब मैं इसको आपकी सहूलत के लिए कॉपी करके नीचे ले आता हूं, कॉपी पेस्ट, ये यहां आ गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें से कुछ पार्टिकल्स या कुछ कंकर या कुछ पत्थर पेबल्स जो थे वो मैंने हटा दिए, और इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, और ये अब एक नए वॉल्यूम में आ गया। ये इसका नया वॉल्यूम, और मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो अब इस पे पेबल्स रखे हुए, टेम्परेचर तब्दील नहीं कर रहा, यानी कि अगर पहले इसका टेम्परेचर T1 था तो अब भी इसका टेम्परेचर रिजर्वायर की, उस थ्योरेटिकल चीज रिजर्वायर की वजह से इसका टेम्परेचर भी सेम रहेगा। तो अब क्या होगा, अब मैं पहले प्रेशर और वॉल्यूम से मैं ट्रेवल करता उसी प्रोसेस को दोहराता हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हुआ स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ गया। ये स्टेट 2 थी और ये स्टेट 1 है, ये 1 और 2। अब मैं अगर जब आऊंगा तो मेरा जो कर्व बनेगा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, कम से कम ये इस हिस्से में, जी हाँ, ये इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अगर मैं इसको बढ़ाऊं, यानी कि मैं प्रेशर को बढ़ाता जाऊं तो वॉल्यूम इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा, और अगर मैं प्रेशर को कम करता जाऊं तो वॉल्यूम इस तरह से इंक्रीज करता चला जाएगा, इन स्टेट से आगे या पीछे भी। तो यहां पर जो है ये मेरा टेम्परेचर जो है वो T1 कांस्टेंट है, उस सूरत में ये हाइपरबोला मेरे पास बनेगा। तो ये इसको अलग कर दिया मैंने। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT मेरे पास मौजूद है।
यहाँ पर T क्योंकि एक कांस्टेंट है और R भी एक कांस्टेंट है और N नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये भी कांस्टेंट है, तो PV एक किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो PV है वो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P बराबर हो जाएगा K डिवाइडेड बाय V। अगर हो सकता है कि आपको ये बहुत 100% फेमिलियर ना लगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि P इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये कुछ, अगर मैं y इज इक्वल टू 1/x की एग्जांपल मैंने जैसे कि लिखी है यहाँ पे, इसकी बात करूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, और इसका जो पैराबोला बनेगा, ये रेक्टेंगुलर पैराबोला, वो कुछ इस तरह का बनेगा। और इस केस में जबकि मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, ये पैराबोला इस तरह से बनेगा। और अगर टेम्परेचर T1 की जगह कुछ और होता और रिजर्वायर का टेम्परेचर वो होता, फर्ज कर लीजिए जैसे कि ये होता, ये यहाँ पर स्टेट 1 होती, स्टेट 2 होती, तो ये इस तरह से बनता, तो ये एक कोई और स्टेट होती, लेकिन या ये स्टेट चेंज भी पैराबोला ही को डिफाइन करता, पैराबोला ही की शक्ल में इसमें चेंजेस आती हैं। तो यहां पर मैं एरिया अंडर द सर्टेन पार्ट ऑफ द कर्व मालूम करके, ये मेरा टेम्परेचर T होता तो ये होता। अब मैं क्योंकि बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूं, अब ये एडियाबैटिक की जैसे कि बात हमने की थी कि यहां पर रिजर्वायर नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास एक रिजर्वायर मौजूद है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं, कुछ इत्मीनान महसूस करें सारे आइडिया को समझने में। तो ये हम आइसोथर्मिक स्टेट की बात करें, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसको हम कहते हैं आइसोथर्म। ये जो हर कर्व जो है कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आइसोथर्म भी कहलाता है, यानी ये पैराबोलिक पाथ जो है इसे हम आइसोथर्म कहते हैं। अब सवाल यह कि इस आइसोथर्म में या इस कंडीशन में इसने कितना वर्क किया। जाहिर बात है कि एरिया अंडर द कर्व जो है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, एरिया अंडर द कर्व जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यानी इस स्टेट से स्टेट 1 से स्टेट 2 में आने में जिसने पिस्टन को मूव करवाया, ऊपर की तरफ मूव करवाया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क डन हुआ। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम जो है ये कहलाएगा, ये इसका एरिया अंडर द कर्व जो है इससे डिफाइन किया जाएगा, इस एरिया अंडर द कर्व से या एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ग्राफ से। तो अगर मैं कैलकुलस में, जाहिर बात है कि मुझे कैलकुलस में जाना पड़ेगा, और अगर आप कैलकुलस से नफरत करते हैं तो आप अपनी आंखें और कान बंद कर लीजिए, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास फिलहाल कोई चारा नहीं है और मैथमेटिक्स अच्छा खासा हो जाएगा। ये मैंने मिटाया। तो अब मुझे इस एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है। आइसोथर्मिक असम्पशन है तो उसकी वजह से मेरा मैथ थोड़ा आसान हो गया है। यहां पर P जो है PV इज इक्वल टू nRT एक कांस्टेंट है, और P जो है यहां पर अगर आप गौर से देखें तो फंक्शन ऑफ V है, ये बात भी जहन में रहे। तो nRT डिवाइडेड बाय V, तो P जैसे मैंने कहा कि फंक्शन ऑफ V है, क्योंकि मैं यहां पर y इज द फंक्शन ऑफ x की इसको ले रहा हूं एनालॉजी को, तो ये P इज द फंक्शन ऑफ V अगर है, तो अब एरिया अंडर द कर्व ये मेरा वॉल्यूम 1 है और ये मेरा वॉल्यूम 2 है। तो इसका क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा पूरे के पूरे को ओवर द रेंज, सॉरी ये मैं इसको वर्क डन मालूम करना, तो वर्क डन जो है वो होगा PV टाइम्स DV। सही। अब यहां पर जो मेरे पास जो फंक्शन है dV वो nRT बाय V है, ये बात भी PV जो है वो मेरे पास nRT बाय V है। तो इस सूरत में मेरे पास क्या होगा, nRT बाय V इनटू dV। सही। V जो है वॉल्यूम है। अब जैसे कि हमने कहा था कि हम एक रिजर्वायर के ऊपर बैठे हुए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा, तो अब होगा क्या, होगा ये कि इस सिस्टम के अंदर रिजर्वायर से हीट आ रही होगी मुसलसल, जो इसको टेम्परेचर को गिरने नहीं देगी, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, और R भी एक कांस्टेंट है और N भी जाहिर बात है एक कांस्टेंट है, क्योंकि हम ना तो कोई गैस निकाल रहे हैं और ना डाल रहे हैं। तो ये V इंटीग्रल ओवर V1 टू V 1 अपॉन V dV, और nRT ये बाहर क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका मैं एंटी डेरिवेटिव अगर लूंगा तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग। जी हाँ, तो वर्क डन बाय द सिस्टम nRT इंटू
नेचुरल लॉग ऑफ V इंटीग्रेटेड ओवर V1 और V2। अब जब हम इसको रिजल्ट देंगे इसका, तो ये होगा nRT इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V1, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो अब मेरे पास क्या आ गया, nRT इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V1, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी अगर माइनस कर रहे होते तो ये फिर ये डिवाइड हो जाते हैं लॉग में आने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मेरे पास इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम्स हैं और इनका मैं नेचुरल लॉग लूंगा, तो ये आइसोथर्मिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ये बात जहन नशीन रहे कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये सिस्टम का किया हुआ काम है जो उसने उस पिस्टन को धकेलने में किया। और nRT जो है ये आइडियल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और इस केस में ये T1 है जो कि पूरे प्रोसेस में, और ये V1 स्टार्टिंग वॉल्यूम है और V2 जो है वो एंडिंग वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम है। तो अब मुझे ये मालूम करना है कि मैंने इस सिस्टम में इस आइसोथर्मिक प्रोसेस के दौरान कितनी हीट ऐड की है, कितनी हरारत शामिल की है इस सिस्टम के अंदर। जाहिर बात है कि रिजर्वॉयर है वो मुसलसल इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हुए, यानी कि वो कुछ ना कुछ हीट, कुछ ना कुछ हरारत इंजेक्ट कर रही है, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, वरना कैसे होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो तो टेम्परेचर चेंज पर डिपेंड करती है, वो तो तब्दील नहीं होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो ही रहेगा। तो डेल्टा U जो है वो बराबर हो जाएगा Q माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम W। सही। अब डेल्टा U मैंने कहा था कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये जीरो है क्योंकि टेम्परेचर तब्दील नहीं हुआ। और Q मुझे मालूम करना है, वर्क डन जो है वो मैंने अभी मालूम किया है, तो Q हो जाएगा इज इक्वल टू W वर्क डन, यानी कि इस सिस्टम ने जितना भी ये वर्क किया है वो ही उतनी ही हीट इस सिस्टम में ऐड हुई है इन केस ऑफ आइसोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस। तो अगर हम ये देखें तो हमें अब चीजें ज्यादा आसानी से और बहुत वाज़ेह तौर पर समझ में आ रही होंगी। अब मैं एक बार फिर वही PV डायग्राम जो है दोबारा बना रहा हूं। ये लीजिए जनाब, ये आया, ये स्टेट 1 और ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिफाइन करती हुई ये स्टेट चेंज, ये स्टेट 2 और ये स्टेट 1। और मैंने इस कर्व के नीचे जितना एरिया है वो मैंने मालूम किया, और वो एरिया जो है वो nRT log ऑफ V2 डिवाइडेड बाय V1, और ये मेरा वॉल्यूम V2 और ये V1 था, याद रखिए। X एक्सिस पर वॉल्यूम है और Y एक्सिस पर प्रेशर है। तो अब कन्वेंशन क्या है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो और इंटरनल एनर्जी जो है वो आप नहीं तब्दील हो रही हो, तो ये वर्क डन जो है ये हीट एडिड के बराबर हो। जितनी हीट इस सिस्टम को मिली है वो सारी की सारी हीट जो है वो इस्तेमाल हुई है इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए पिस्टन को मूव कराने में, यानी वर्क डन करने में, काम करने में ये एनर्जी इस्तेमाल हुई है। सही है। तो ये जो डेल्टा U है इस केस में जाहिर बात है जीरो हो गया, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुआ, और टेम्परेचर तब्दील ना होने की वजह से हमारी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। और यही PV डायग्राम जो है वो हमें एडियाबैटिक और आइसोथर्मिक के मायने समझाने के लिए मेरा ख्याल है बहुत काफ़ी है, और इन्हीं पर आगे चलते हुए मैं मज़ीद बात करूँगा आपसे, और मुख्तलिफ थर्मल सिस्टम्स पर हम इनको अप्लाई भी करेंगे। उम्मीद है ये बातें आपकी